सभी मित्रों को मेरे प्यार भरे नमस्कार। विजयदशमी की शुभकामनाएं आप सबको। इस धरती पर जीव हिंसा का पूरा अंत हो जाए, सकल प्राणी कोटि अ, खुशी से, आनंद से, मिलजुल कर, शांति से, सुकून से, बिना डरे जब जीने लगे, अहिंसा की स्थापना जब हो जाएगी, तभी सही मायने में विजयदशमी हमारी हो सकती है फ्रेंड्स। इसके लिए हम शाकाहार जगत के लिए, ध्यान जगत के लिए निरंतर प्रयास करके अपने जीवन को हम समर्पित करना है। थैंक यू। यही मेरी विजयदशमी का संदेशा है। प्रभु की आज और एक अद्भुत चंद्रा 9th डे में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम अपना टॉपिक है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति वो है फ्रेंड्स जो हमारे इस जीवन को चलाती है। अगर सही संकल्प लिए तो हम सही रास्ते में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। अगर हमारा संकल्प सही नहीं है तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम विकल्पों से भरे हैं, सही डेस्टिनेशन तो छोड़ो, हम अपना जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति क्या है, किस तरह से अपने जीवन को हम निर्देश दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, मार्गदर्शन अपने जीवन में खुद का मार्गदर्शन कैसे बन सकते हैं, अद्भुत ज्ञान। अभी हम इतना पावर ऑफ इंटेंशंस उनके कितने कितने बुक्स हम पढ़ रहे हैं। 30 years बैक ही पत्री सर हमें इस संकल्प शक्ति का बुक ज्ञान हमको देकर सबको अपने अपने जीवन को कैसे मार्गदर्शक हम खुद बने, कैसे हमारी संकल्प, कैसे हमारी सोच विचार हमें चला रही है, कैसे अपने जीवन को हम बदल सकते हैं, सारा ज्ञान हमको दे दिए हैं। तो आज हम संकल्प शक्ति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पत्री जी की वाक्य हम सुनेंगे फ्रेंड्स। पत्री जी की बातों से ही द पावर ऑफ इंटेंशन। रागिनी को देखा। नीलम जी बनाएंगे। थैंक यू। That's all. Not effort. Intention is not an effort. Intention is intention. Effort is effort. No efforts are there. Only intention. Your intention should be there in the mind. That's all. Not effort. Intention is not an effort. Intention is intention. Effort is effort. No efforts are required for enlightenment. Intention is required. That I want to become enlightened. तो चप्पल फाड़ कर मिल जाएगा आपको. Your intention becomes an order for the whole universe. The whole universe is jumping in to actualize your intention. Efforts are not required because you are a God. Everything is God. Efforts are discounted. Intention is counted. I am sitting at home now, right now, but I am talking to all of you. Where is the effort on in my case? I just got up and came here and sitting in this and talking to you. It is my intention, that's all. There is no effort here. No efforts. Only intention, pure intention. Backed by non-violence, non-killing, non-interference in your life. An intention backed by killing and violence and interference in your life will not work. An intention backed by intention. Effort is effort. It should be there in the mind. That's all. Not effort. Intention is not an effort. Intention is intention. Effort is effort. No efforts are required
for enlightenment, intention is required. That I want to become enlightened. फिर चप्पल फाड़ कर मिल जाएगा आपको. Your intention becomes an order for the whole universe. The whole universe is jumping in to actualize your intention. Efforts are not required because you are a God. Everything is God. Efforts are discounted. Intention is counted. I am sitting at home now, right now, but I am talking to all of you. Where is the effort on in my case? I just got up and came here and sitting in this and talking to you. It is my intention, that's all. There is no effort here. No efforts. Only intention, pure intention. Backed by non-violence, non-killing, non-interference in your life. An intention backed by killing and violence and interference in your life will not work. An intention backed by non-killing, non-violence and non-interference in your life. You are daily eating meat and intending something, nothing is going to happen. You are eating meat, goat, chicken, but you are intending something should happen to you. Your third eye should open. Nothing is going to happen. Your pure intention backed by non-killing, non-violence and non-interference. There are three principles. You are killing everything and praying for Jesus and trying to manifest, oh Jesus, give me that, nothing is going to happen. Your intentions are futile. Because the killing is there, the karma is there. Stop doing bad karma from today onwards, and then your intentions will manifest automatically without efforts. वाह, कितनी अद्भुत ज्ञान दिया है फ्रेंड्स सर. संकल्प, इंटेंशन यानी संकल्प. संकल्प हमारे तब साकार होते हैं, इंटेंशन तो करना है, और तभी साकार होते हैं जब हम गुड कर्मा करते हैं, अहिंसा नहीं करते, इंटरफेरेंस नहीं करते. तो पत्री सर का इस बात का हम ज्ञान लेते हुए संकल्पों के बारे में, कैसे हम गुड इंटेंशंस कर सकते हैं, एनलाइटन होने के लिए संकल्प हम कैसे कर सकते हैं, हम आज जानेंगे. आज हमारे सामने आई हैं हमारे सबसे प्रिय मास्टर, जो सबको परिचित है, स्पेशली ओडिशा में, वो है कांता दी दुकर. कांता मैम, जब मैं 2016 से कांता जी को मैं जानती हूँ, तो हर एक पिरामिड मास्टर अपने में एक बेमिसाल अपनी एक स्पेशलाइजेशन लेके रहते हैं, कोई ना कोई सेवा का मिसाल है. तो 2016 में जब मैं ओडिशा को गए, वहां पर हम एक सेशन कर रहे थे, तो वो समय में एक अपनी ही 4 फ्रेंड्स को लेकर आकर साधारण सी वहां पर आकर बैठी थी. वो अकेली नहीं आई, अपने 4 दोस्तों को लाकर मैं ध्यान को जा रही हूँ, आप भी आइए बोलकर वहां पर बिताई हैं. और मैं वहां पर गहराई ध्यान में बैठ गए, तो मुझे 2 व्यक्तियों का इस तरह का, वो बहुत ही अद्भुत काम करने वाले हैं, ओडिशा के लिए खड़े होने वाले हैं, इस तरह का मुझे 2 व्यक्तियों का मुझे दिखाई दिया. तो उन 2 व्यक्तियों में एक कांता दी थी, और उसके साथ मास्टर्स आकर बहुत तरह का स्पाइरल एनर्जीज सर्कल में प्रोसेस हो रही थी. तो मैं तब जाके वहां पर मेरे साथ जो मास्टर है, मैं उनको बता रही थी कि ऐसा हुआ है. तो अच्छा, साधना करते अपने दोस्तों के साथ रही थी. तो मैं भी वो मास्टर मानने के लिए तैयार नहीं था कि कांता दी वो लेवल तक जाएगी, मगर मुझे तो पता चल गया क्योंकि मास्टर्स मुझे दिखाए. तब से मैं देख रही हूँ कांता दी को. यहाँ पर दो रहते हैं फ्रेंड्स. मास्टर्स हमको चुनते हैं, देन वी चूज आवर्स. मास्टर्स तो हमको चुनते हैं, मगर जानने के बाद भी कितने लोग तैयार हो जाते हैं अपने आप को चुनकर इस मार्ग में, सत्य के मार्ग में चलने के लिए. कहीं मास्टर्स को ऑलरेडी बुलावा आ गए हैं, मगर अभी भी अपनी जीवन की इस फिजिकल रियलिटीज में बंधे होकर डर रहे हैं, आंख नहीं खोल रहे, सत्य को भीतर नहीं उतरने दे रहे.
सेवा के लिए अपनी ही सीमित लिमिटेशंस में रहते हैं, अपनी अहंकार को लेकर, अंधकार को लेकर, ज्ञान को लेकर, खुलकर ज्ञान लेकर रहने के लिए भी, खुलकर सेवा करने के लिए भी नहीं बाहर आ सक रहे हैं। तो हम वी चूज आवरसेल्फ, यहाँ पर कोई भी सेवा करने के लिए तैयार है, सेवा कर रहे हैं, मास्टर्स को हमको चुन लिया, बट वी चूज आवरसेल्व्स टू गो इन दिस पाथ। एनलाइटन के लिए हमको चुनते हैं। उसी में से है हमारी सबसे प्राउड पिरामिड मास्टर कांता दी। ओडिशा के लिए, ओडिशा में इतना ज्ञान प्रचार हुआ है, तो मैं गर्व के साथ कहती हूँ कांता जी की वजह से, क्योंकि गांव गांव में जाकर सब लोगों को पता कर कोई भी मिला तो उनसे बात करना, उनको बताना, उनको वो कार्ड देना, वो पैम्पलेट देना कि यहाँ पर ध्यान हो रही है, ध्यान कुंभ हो रही है, ध्यान चक्र हो रही है, यहाँ पर हम सेंटर कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाइए। इस तरह दिन रात उनके दिल में यही चलती रहती है कि ध्यान लोगों तक कैसे पहुंचाए, मैं सबके लिए मैं क्या करूं। उड़ीसा के लिए सेवा दल का प्रेसिडेंट भी है कांता दी। तो प्रेसिडेंट से बस छोटी सी एक बैच होती है, तो कहीं मास्टर्स बिना बैच भी बहुत काम करते हैं। तो बैच तो ऐसे ही मिल गए, कांता दी उस बैच कभी परवाह नहीं करी, उससे भी ज्यादा काम हमेशा करती रही। कोई उसको वैलिडेशन दिए या ना दिए, कोई उनको केयर करे या ना करे, मुझे क्या करना है बोलकर हमेशा अपना काम को लेकर, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, उड़ीसा का रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर जाते हैं। तो संकल्प शक्ति उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करती है। संकल्प शक्ति को जान ली है। संकल्प यानी मुझे डायमंड नेकलेसेस चाहिए, मेरा पति मेरा गुलाम बन जाए, वो संकल्प नहीं होते हैं। विकल्पों से भरा हुआ वो संकल्प जो सही डेस्टिनेशन तक हमको नहीं पहुंचाते, वो संकल्प नहीं होते। संकल्प वो होते हैं जो सबकी भलाई हो, लोक कल्याण की बात हो। जब हमारी संकल्प इतना उच्च तल की हो, तब ऑटोमेटिकली सारी कायनात हमारी पास आकर गिर जाती है और सब कुछ होने लगता है। तो उस महासंकल्प से जुड़कर कांता दी उड़ीसा के लिए दिन रात प्रचार प्रसार कर रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हमेशा करती रहती है, दिन रात इसी में लगा रहते हैं। तो मैं बहुत ही प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि कांता दी एक ग्रेट पिरामिड मास्टर और मेरी फ्रेंड है, मेरी दीदी है। और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। कुछ भी हो तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकते हैं। कुछ भी गलत हो गई या ये सही नहीं हो रही, मैं बताती हूँ तो एगोलेस होकर बात को समझती हैं और अपने आप को संवार कर फिर कैसे सेट करना है दीदी बताओ, ऐसा जाना है, तो उस बात को अपना कर जाती हैं। तो एक पिरामिड मास्टर कैसा होना चाहिए, हम कांता दी से हम सीख सकते हैं। तो उनकी बातों में आज संकल्प शक्ति को हम जानेंगे फ्रेंड्स। जोरदार तालियों के साथ हम कांता दी को, अपनी ही कांता दी को हम वेलकम करेंगे। यस कांता दी, वेलकम। पितामह पत्रे सर को दिल की गहराइयों से भाव भरा नमन। सभी मास्टर्स जो मेरे जीवन में गुरु बनकर आए और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उन सबको आत्मवंदन। ध्यान के इस राह में चलते हुए रागिनी मैम मिले, वो तो मेरी एक सहेली की जैसे है, जो भी मुझे ज्ञान, छोटा से छोटा क्वेश्चन भी मैं पूछती हूँ तो वो प्यार से बताती है। जहाँ मैं गलती करती हूँ, मेरी गलतियों पर भी मुझे डांटते हैं और फिर मैं पूरा विनय के साथ उस गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ती हूँ। तो मुझे एक पत्थर से, अनगढ़ पत्थर से एक मूर्त का रूप देने वाली, जो अगर मैं कहूँ जो मेरे इतने करीब है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है उन्हें पता चल जाता है और उनके भीतर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उन्होंने किस शक्ति क्षेत्र को प्राप्त कर लिया है, वो कहाँ पहुंच रही है, ये मुझे पता चलता है। हम दोनों का गहरा संबंध है। तो मैंने उनसे बहुत सीखा, उनके जीवन से, और हमेशा मैं सीखती रहती हूँ क्योंकि मैं उनमें एक सत्य की राह पर चलने वाला एक योद्धा के रूप में देखती हूँ, एक वॉरियर जिसकी उम्मीद 32 सर करते हैं हर एक पिरामिड मास्टर से। मुझे भी वैसा ही बनना है, यही मेरा संकल्प रहता है और मैं वैसे ही अपने आप
को तराश रही हूँ, संवार रही हूँ, बना रही हूँ। तो दोस्तों, सभी पार्टिसिपेंट्स को जो यहाँ मौजूद होकर मेरी बातें सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, पूरा भारत के कोने कोने से, पता नहीं कैसे मास्टर लोग जान जाते हैं, समझ लेते हैं। बहुत से लोगों के कॉल्स आते हैं, अपने क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बड़े प्यार से उन्हें बताती हूँ और मुझे लगता है वो मेरे दिल के करीब है। इतना मैंने अंदर से महसूस करती हूँ और वो सब प्यार ही हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा हिम्मत देता है। तो दोस्तों, मैं अपना परिचय, कहाँ से कैसे ये रास्ते से गुजरी हूँ, थोड़ी सी एक झलक बताना चाहूंगी। कटक ओडिशा प्रकाश प्रवासी कांता दुगड़ 2009 में ध्यान में आई थी। राजस्थान के एक गांव में पली बढ़ी और वहीं भी 17 वर्ष की उम्र एक बड़े परिवार में शादी हुई, जहाँ 9 बहन भाई, सास ससुर दादी सास, इतना बड़ा संयुक्त परिवार। मैं तीसरे नंबर पे, देवर ननद छोटे छोटे 7 वर्ष 9 वर्ष 11 वर्ष, मैंने छोटे छोटे भाई बहनों जैसे थे। और मेरे अंदर पता नहीं इतना सेवा का भाव था 17 वर्ष की उम्र में ही, कि मैंने उन्हें अपने भाई बहनों जैसे अपना लिया। पूरा अपने मैके को भूल ही गई और उन्हीं में अपनी मतलब भाई बहनों माँ बाप की छवि देखती थी और दिन रात काम में जुटी रहती थी, क्योंकि उस समय बहुत वर्क होता था। सब चूल्हे में खाना बनाना, लकड़ियां तोड़ना, बहुत काम था जो भी था। लेकिन कहते हैं ना कि हम जो अपने जीवन की कहानी लिख कर आते हैं, उनके हिसाब से घटनाएं बदलती रहती है। तो शादी के 7 साल बाद मैं अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को लेकर पति के साथ उड़ीसा आ गई, कटक में। उनके बिजनेस था यहाँ पे। तो यहाँ पर बच्चों को बड़े करते हुए मेरे अंदर जो बचपन के आध्यात्मिक संस्कार जो मुझे माता पिता से मिले थे, क्योंकि मेरे माता पिता देवी देवताओं की पूजा में इतना विश्वास नहीं करते थे, ज्यादा रिचुअल्स नहीं थे। ऐसे ही ससुराल में भी कोई ज्यादा रिचुअल्स नहीं थे, क्रियाकांड नहीं थे। तो मेरे अंदर भी आध्यात्मिकता के संस्कार अंकुरित हो रहे थे। अंदर कुछ खोज थी, जो इस भौतिक जीवन से परे की खोज थी। बहुत सारे क्वेश्चन, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम कहाँ से आते हैं धरती पर, वापस कहाँ चले जाते हैं, ये जन्म मरण क्यों होता है, दुख सुख क्यों है। ऐसे ही प्रश्नों के झूले में झूलते हुए बच्चों को बड़ा कर उनकी शादी हो गई। और उनकी शादी के बाद मुझे PSSM से जुड़ने का अवसर मिला 2009 में हरीश भाई के द्वारा। और वो मेरे घर पे आते, मुझे ध्यान सिखाते, ज्ञान की बातें बताते। हालांकि उस समय वो सब बातें मुझे बहुत ही एक क्या बोलूं आश्चर्यजनक लगती थी, ऐसा भी हो सकता है क्या। और उनके जो ज्ञान, जो निस्वार्थ भाव से आना, जो ज्ञान, मैं सोचती थी अरे यहाँ तो धरती पर भी भगवान रहते हैं, भगवान कहीं और नहीं धरती पर ही है। और जिन गुरु के ये शिष्य जो ज्ञान मुझे बता रहे हैं, ये हरीश भाई और उनके छोटे भाई मनीष भाई भी आया करते थे, वो भी उसी तरह ज्ञान देते थे। इनमें इतना ज्ञान है तो इनके गुरु क्या होंगे, मैं वो ही सोचती थी। और मुझे फिर उसके बाद कई बार पत्री सर का उड़ीसा में आगमन हुआ तो मैं जाती थी, हर सेशन में जाती थी, किंतु दूर से ही सेशन सुन के आ जाती थी, उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन मैंने उन्हें दिल से अपना लिया, क्योंकि मैंने बहुत जगह जो अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए ध्यान में गई, किंतु मेरी आत्मा को वहां सांत्वना नहीं मिली। मुझे लगता था अभी यहाँ अधूरापन है, कुछ ऐसा ध्यान चाहिए जो मैं सीख कर सिखा सकूं। ये मुझे शुरू से ही था, चाहे मैं हर कार्य में कुशल थी, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी हो, तो मैं यही जो भी मेरे से सीखने आता हर एक को सिखाना, मुझे बहुत खुशी होती थी हर एक को सिखाने में। जो चीज मुझे आती थी मुझे ये लगता था ये बांटनी चाहिए, हर एक को बतानी चाहिए।
तो ये मेरा बचपन से ही नेचर था। तो जब मैं ध्यान में आ गई, ध्यान करने लगी, तो मुझे इतना मतलब एक मैंने क्या बोलूं, जो एक मुरझाई सी एक कांता थी 50 साल की, जैसे कि जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं था, बच्चों की शादी हो गई, सब अपने में मस्त, मैं तो एकदम ऐसे, क्योंकि मुझे शादी के 30 साल तक कहीं कोई सोसाइटी समाज वगैरह में जाने का मतलब शुरू से मौका ही नहीं मिला, खाली घर का काम बस। और उसी में मेरा किसी से ज्यादा कोई बोलचाल, कुछ लोगों के सामने बात करने का, सहमी सी कुड़ी सी रहती थी हमेशा। लेकिन ध्यान से मेरे अंदर एक नए बीज का आरोपण हुआ, एक पौधा, और पौधे से वृक्ष की ओर बढ़ने लगा। तो मेरे अंदर जो वो आध्यात्मिकता के जो बोलूं कि जो वृक्ष की जो जड़ें थी वो और जैसे जैसे पुष्पित पल्लवित जैसे जैसे होती हुई, तो जैसे बोलते हैं ना, जब कटोरा दूध से भर जाए तो क्या करेगा, छलकेगा। ऐसे ही मेरे अंदर वो प्यार, वो उत्साह, वो जीवन का एक जोश, एक जुनून, वो इतना ज्यादा कुछ ही महीनों में हो गया कि वो छलकने लगा। मैं रह नहीं पाती थी, इसको बताऊं, उसको बताऊं, उसको बताऊं। पता नहीं, मैं जब भी दोपहर में भी रेस्ट के लिए 10 मिनट भी लेटती तो मुझे मास्टर्स दिखाते थे, वहां जा, वहां सिखा, वहां सिखा। हालांकि मुझे इतना कुछ पता नहीं था ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं रह ही नहीं पाती थी और उठकर चल देती थी। मेरा फिजिकल वर्क भी बहुत था, मतलब ऐसे पैरों पे खड़े खड़े ही दिन निकल जाता था, इतना काम। उसके बावजूद भी मैं इस आध्यात्मिकता को हमेशा आगे रखती थी। और कभी कभी कोई सीखने के लिए बोलता, मुझे सिखाइए, कितनी भी दूर उसका घर हो, कटक से भुवनेश्वर तो मेरे लिए जैसे खेत की में जाने जैसे ही बात था। मैं दौड़ पड़ती थी और प्लानिंग बन जाती थी मेरी, आज मुझे क्या क्या करना, वो मुझे यहाँ पे दिखता था। और उसमें कुछ स्पेस रहती थी कि बाई चांस किसी को नया ध्यानी को ध्यान सिखाना है तो ये काम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करके कर सकती हूँ। अपने पर्सनल कामों को बहुत महीनों तक पीछे भी कर देती, लेकिन आध्यात्मिकता का कार्य और अपना ये भौतिक जीवन का, इसको हमेशा बैलेंस रखती थी। और मुझे बहुत आनंद आता था सिखाने में, क्योंकि सीख कर जिनको वो खुशी होती थी, उनके चेहरे की वो खुशी, वो ऊर्जा देखकर मैं तो गदगद हो जाती और हमेशा ग्रेटिट्यूड करती थी गुरुदेव को, जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, जो मेरी आत्मज्ञान की पिपासा थी उसे पूर्ण किया, मेरी प्यास को शांत किया। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगी, खत्री सर से मेरा इतना गहरा कनेक्शन है। मैंने जब भी कोई काम होता है, कुछ भी पूछना होता है, जहाँ मुझे नहीं राह मालूम होती है, मैं आंख बंद करके उनको याद करती हूँ, बताइए गुरुदेव क्या काम है, मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या करूँ, मेरे आगे और क्या है काम करने के लिए और किस तरह करूँ, वो सब कुछ मुझे इंट्यूशन के द्वारा आ जाता है। ध्यान में आने के बाद तो सबके साथ ऐसा ही होता है कि हमें पार्टियों में, शादियों में, वहां सब जाना फिर बंद हो जाता है, गोसिप से इधर उधर जाना। हर एक क्षण का हम चाहते हैं कि उसका भी उपयोग हो। और मैं यही सोचती थी, 50 वर्ष बाद मुझे ध्यान मिला, शुरू में अफसोस होता था, लेकिन सब जब समझ आई कि नहीं, मेरा यही मतलब था लाइफ का पर्व कि मैं इसी उम्र में आऊंगी ध्यान में, तो अभी भी जितना समय मेरे पास है उस हर एक क्षण का मैं उपयोग करूं, और तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और जब मैं ध्यान सिखाना शुरू करी हूँ, अंदर से आता था, घर घर मुझे जाना है, तो मैंने 53 एज में स्कूटर चलाना सीखा और घर घर जाके ध्यान सिखाती थी। शादी ब्याह में घर के जाना जरूरी होता था, लेकिन सोचती थी कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे दोनों काम बन जाएं। जाती शादी में थी, लेकिन एक संकल्प डाल देती थी कि मुझे एक बड़ी सी क्लास करनी है। तो इस तरह से मैं राजस्थान, रायपुर, गुवाहाटी,
कलकत्ता और भी कई जगहों में जहां जहां भी शादी के लिए गई हूँ 4 दिन 3 दिन के लिए, फिर भी वहां मैंने 2 या 1 बड़ी क्लास जरूर करी। तो दोस्तों इसी प्रकार जहां भी मैं जाती हूँ, किसी भी गांव में किसी के घर मिलने भी, तो वही सोच कर जाती हूँ कि अच्छा यहाँ पर कितने लोग हैं, एक नजर डालती हूँ, कैसे उनको ध्यान में बैठाऊं। ध्यान ध्यान ध्यान, हर एक को ध्यान सिखाना, हर एक को उसके आत्मा के बारे में बताना। तो दोस्तों इसी प्रकार यहाँ भी मैं सर अपने संकल्प के द्वारा ही आगे बढ़ी हूँ। तो ये मेरा संकल्प शुरू हुआ था जब मैं ध्यान में 6 महीने के बाद मुझे हरीश भाई ने कहा आपके घर 40 दिन का क्लास रखिए। उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं हंसी, मेरे घर में 5 छोटे छोटे बच्चे और 40 दिन का क्लास। उन्होंने कहा संकल्प कीजिए, हो जाएगा। और मैंने उस दिन संकल्प रखा, 3 महीने बाद संकल्प पूरा हुआ। 40 दिन की क्लास में 20-25 लोग हर दिन रहते थे, इतनी ऊर्जा रहती थी। और दोस्तों देखिए चमत्कार, मेरे 2 छोटे जो बच्चे थे ना, सबसे छोटे पोता पोती, वो सो जाते थे उस समय, और बाकी 2 अपने पापा के पास खेलते रहते। एक थोड़ा बड़ा था तो उसका चिंता नहीं था। मैं अपनी घर में 3 काम वाली आती थी, तीनों को उस समय बैठाती थी, आप ध्यान में बैठिए, आपका काम हम लोग मिलकर आपका हाथ बटाएंगे, आपके काम में सहयोग करेंगे, लेकिन आप ध्यान कीजिए। हर एक प्राणी मात्र में मैं वो उसी परमात्मा को देखना शुरू कर दिया था, लगता था मुझे वैसा ही, सब में समानता लगती थी। तो इसी प्रकार मैं बहुत सारी जगह यहाँ उड़ीसा में भी गई, हालांकि मुझे कोई बोलता नहीं था कि आपको ये करना है ये करना है, लेकिन मेरे अंदर से ही मेरी योजना के तहत मेरे अंदर इंट्यूशन आते थे, मुझे जाना है। अच्छा जाना है तो कैसे जाना है, अंदर क्वेश्चन करती थी, तो फिर वो मुझे दिखता था, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो कभी कभी तो ऐसा भी हुआ, मैं पूरी अकेले गई हूँ, जटनी खुर्दा गई थी, सुबह 8:30 बजे, सिर्फ ड्राइवर के साथ, वापस 8:30 बजे आई हूँ। कभी कभी 1-2 जन साथ भी हो जाते थे। तो इसी तरह राहुल किला, काटाबाची, भद्रक, जाजपुर, अंगुल, खुर्दा, जटनी, बहुत सारी जगह पे मैं ध्यान सिखाने के लिए गई हूँ। और अभी भी ये यात्रा तो चलती ही रहेगी, बहुत कुछ करना है। हमेशा एक काम सीख लिया तो दूसरा कैसे सीखना, कैसे करना। हालांकि मैं हिंदी में पढ़ी लिखी हूँ, ज्यादा पढ़ी भी नहीं थी मैट्रिक तक, और उसके बाद 30 साल कुछ काम भी नहीं किया, बट अभी भी कुछ भी काम सामने आता है, कभी रेखा जी से पूछती हूँ, कभी किसी और से पूछती हूँ, और कभी इंग्लिश में नहीं आता तो उनको मैसेज करके पूछती हूँ। लेकिन सीखना सीखना सीखना, हर काम मुझे ही करना है, अपना मास्टर खुद ही बनना है। जो गुरु जी ने शुरू में ही कहा है, खुद के गुरु खुद को ही बनना है। तो हमारे अंदर हमें जो चाहिए उस पर मास्टरी हमें ही करनी है। तो इसी प्रकार दोस्तों 2018 में ऋषिकेश महाकुंभ में पत्री सर ने नॉर्थ में सेवा दल का स्थापना की। सेवा दल PSSM का एक ऐसा विंग है जिसका कार्य है ध्यान प्रचार करना। तो पत्री सर ने मुझे उसके लिए मतलब मुझे बताया गया मास्टर्स के द्वारा कि आज शाम को आपको मनोनीत किया जाएगा ओडिशा के लिए प्रेसिडेंट, सेवा दल के प्रेसिडेंट के रूप में। मैं तो बहुत घबरा गई, एकदम पसीना पसीना छूटने लगा। मैं तो एकदम अनपढ़ और मुझे कुछ आता भी नहीं, सिर्फ ध्यान सिखाती हूँ, वो एक मेरा जुनून है। लेकिन पूरा उड़ीसा की देखभाल ध्यान प्रचार मैं कैसे करूंगी? अगर यात्रा करने के लिए बोले तो मैं कभी अकेली यात्रा नहीं की, टिकट का, ट्रेन का नंबर का मुझे पता नहीं, पर मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो जब मुझे बताया गया नहीं सर ने आपको ही चूज किया है, 4-5 नाम में से आपको चूज किया है, उसके बाद मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि मैंने सोचा गुरु मुझे वहां तक पहुंचाना चाहते हैं तो गुरु ही ये काम करेंगे, बस मुझे तो खड़ा होना है, मुझे माध्यम बनना है।
वो कर रहा है कार्य और मेरे द्वारा बस हो रहा है, मैं एक माध्यम हूँ दोस्तों। तो वहां से आने के बाद अब तो ध्यान प्रचार मुझे ज्यादा ज्यादा करना है ऐसा सोचने लगी, किंतु अब कैसे करूं, हर जगह प्रयास कर रही हूँ, कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, कैसे करूं। तो अचानक से आया, चलो फोन पे सिखाते हैं। तो मैं 5 लोगों को 5 बार फोन में सिखाती थी, एक एक से बात करके। फिर 5 से ज्यादा हो गए तो मुझे भी समय चाहिए, कॉन्फ्रेंस में सिखाना शुरू किया। तो एक बार मैं 5 लोगों को एक साथ, ऐसे करते करते 3 घंटे 15 लोगों को सिखाना शुरू किया। और ज्यादा लोग हो गए तो मैंने कई लोगों को सिखाया, इसकी ट्रेनिंग दी, रेखा जी को, मधु जी को, निर्मला जी को, मंगला जी को, ऐसे कई लोगों को। तो ये सब ओडिशा जो मास्टर मेरे जो साथी हैं, हमेशा मेरा साथ दिया, बहुत प्यारे हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं उन सब के प्रति बहुत आभारी हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही है कि ये यात्रा चल रही है। मेरे लिए एक सपना है कि वो गांव की एक साधारण सी सिमटी सी कुड़ी सी औरत और आज यहाँ तक पहुंची है। वो गुरु और ध्यान का ही कमाल है दोस्तों। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए सभी मास्टर्स का धन्यवाद। अपने बारे में मैंने बता दिया, अभी हम ध्यान करेंगे 15 मिनट, फिर अपने टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगी। तो सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, तैयार हो जाइए ध्यान के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए, आराम से बैठ जाइए। हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। पूरी तरह अपने जो बिखरे हुए विचार है चारों तरफ, उनको समेट कर एक तरफ रख दीजिए और अपने अंतर जगत में प्रवेश कीजिए। अपने भीतर एक केंद्र बिंदु पर अपने आप को स्थापित करते हुए पूर्णतः भीतर लौट आए, अपने अंतर जगत में। गुरुजी आप म्यूट हैं। कांता दीदी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आदे
विचार। आखिरी 1 मिनट फ्रेंड्स।
अपने दोनों हाथों की हथेलियों को बंद आंखों पर रखिए कुछ समय के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथ को हटाते हुए एक सुंदर से मुस्कान के साथ सभी आंखें खोल लीजिए और एक जोरदार क्लैप्स के साथ आज का हम सेशन शुरू करेंगे। गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए आज के इस पावन अवसर पर दिल की गहराइयों से निकले 4 पंक्तियों के माध्यम से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी। रोम रोम में तू बसता, हर रोम में तू बसता, रोम रोम में तू बसता, हर रोम में तू बसता। फर्क नहीं कर पाती मैं, फर्क नहीं कर पाती मैं, तू कहाँ और मैं कहाँ, तू कहाँ और मैं कहाँ। खो दिया मिटा दिया अपने को गुरु चरणों में, खो दिया मिटा दिया अपने को गुरु चरणों में। मैं ना रही गुरु, बस तू ही तू रह गया। मैं ना रही गुरु, बस तू ही तू रह गया। धन्यवाद नरेंद्र अंसुरी जी सर, धन्यवाद अरुणा ज्योति माँ और रागिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर हमारे प्रिय गुरु जी का एक कॉन्सेप्ट संकल्प शक्ति पर बोलने के लिए मुझे ये मंच दिया, ये अवसर दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। सभी पार्टिसिपेंट्स को दिल से आभार। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है संकल्प शक्ति और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ ध्यान में आने के इन 12 वर्षों में मैंने जो भी प्रगति की, जो ज्ञान को अर्जन किया और उस ज्ञान को जीवन अनुभव में उतारा, उन सब के पीछे एक दृढ़ संकल्प शक्ति का ही हाथ है। पर ये तो संकल्प तो मैं करती आई हूँ और अपने जीवन को दिशा देती आई हूँ, लेकिन जब मुझे इस टॉपिक पे बोलना था तो मैंने उस पर गहराई से अध्ययन किया, उसे गहराई से और भी करीब से जानने का प्रयत्न किया, तो बहुत सारे दरवाजे वैसे खुलते चले गए। अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां और जीवन के अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि चाहे संकल्प शक्ति हो, चाहे वाक शुद्धि हो, चक्रास के बारे में ज्ञान हो, या सातों शरीर का ज्ञान हो, या मौन के बारे में ज्ञान हो, सभी विषय एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और ये विभिन्न विषय विभिन्न कोणों के द्वारा उस जीवन की सर्वज्ञता को भली भांति समझाते हैं। तो किसी भी वस्तु की सिर्फ लंबाई जानकर या सिर्फ चौड़ाई जानकर या सिर्फ ऊंचाई जानकर हम उसके बारे में पूरा कंप्लीटली उसका ज्ञान नहीं बता सकते। इसी प्रकार हमें जब अपने जीवन को अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग विषयों से जब हम उसे समझते हैं, जानते हैं, उसका ज्ञान अनुभव करते हैं, तो उसकी संपूर्णता को, सर्वज्ञता को जान पाते हैं। विभिन्न आयामों को दृष्टिगत रखकर ही और उन सबका ठीक ज्ञान पाकर उस वस्तु को सही रूप में और अनेक आध्यात्मिक विषयों के द्वारा हम जानते हैं। तो उनमें एक आध्यात्मिक, बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषय है संकल्प शक्ति। तो दोस्तों जानेंगे ये संकल्प शक्ति क्या है। एक विचार उठता है
एक चाह उठती है, और जब उस पर मानसिक प्रतिक्रिया होती है अपने भीतर, मैं ये करूंगा, तो वो संकल्प बनता है। मैं इसे जरूर करूंगा, ये दृढ़ संकल्प बनता है। तो दोस्तों, ये संकल्प शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति ही एक मानसिक प्रतिक्रिया का रूप भीतर लेकर संकल्प शक्ति के रूप में बाहर आता है। हमारे भीतर हमेशा विचार चलते रहते हैं कुछ कर्म करने के लिए, और हम उनसे प्रेरित होकर कार्य कर्म करते रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम संकल्प शक्ति के विविध आयामों को बारे में जानेंगे कि ये संकल्प शक्ति हमारे जीवन में किस तरह कार्य करते हैं, और संकल्प शक्ति के विरोधी तत्व क्या है, संकल्प शक्ति किस आयामों से गुजर कर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, और किस प्रकार फिर वो सिद्धि तक परिवर्तित होती है। हमारे भीतर बहुत सारे विचार उठते रहते हैं, हमें आगे के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु हमारा आलस्य और हमारी अज्ञानता के कारण ज्यादातर हमारा आलस्य भी रहता है। हम उन विचारों को देखा अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और अपने भीतर की पूर्ण शक्ति को, विचारों को एकत्रित करके एक दिशा में जब भेजते हैं, वो होता है संकल्प शक्ति। और पूरे इंटेंशन के साथ पूरा 100% अपना एक ही तरफ लक्ष्य रखते हुए विचारों को भेजते हैं, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है और वो एक कार्य रूप में, भौतिक रूप में आता है। तो सबसे पहले कुछ भी कार्य जो संसार में कुछ भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसका विचार हमारे दिमाग में आता है। हमें अपने जीवन को भी किस दिशा में ले जाना है, उसके लिए भी हम संकल्प ही करते हैं। तो ये संकल्प एक ऐसा टूल है कि इसको अपनाकर हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, फिर भले ही वो कौन सा भी क्षेत्र हो। तो दोस्तों, जब किसी कार्य को करना होता है हमें, और उन विचारों के प्रति हम एकाग्र हो जाते हैं और उनके साथ हमारे इमोशंस भी जुड़ जाते हैं, तो वो कार्य और जल्दी होता है। लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं, हम तो संकल्प करते हैं पर हमारा पूरा ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, आपके पास एक विचार उठा, आपने उसको करने का सोचा, दूसरी क्षण दूसरा विचार आ गया, आपका नजर उधर चला गया, तीसरे समय आपके पास और कोई विचार आया, आपको लगा ये ज्यादा अच्छा है, तो आपका मन उधर चला गया, तो आप किसी भी एक विचार को ऊर्जा नहीं दे पाए, इसलिए आपका संकल्प कमजोर रह गया, दृढ़ नहीं हुआ। पहले आप देखिए आपके लिए क्या अच्छा है। आपके सामने अगर 10 काम है, तो उनसे में सबसे श्रेष्ठ काम क्या है जो आपको ज्यादा कारगर होगा, उस एक काम को चुनिए पहले और अपना पूरा फोकस उसी पे डाल दीजिए, पूरी एकाग्रता के साथ। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को बेचने के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ आंख पे उसकी नजर थी, फोकस सिर्फ उसी एक बिंदु पर। ऐसे ही हमें अपने जो भी संकल्प कर रहे हैं, जिस भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, उस पर अपना फोकस होना चाहिए, और उसके बाद 100% उसी एक ही संकल्प पे रहिए।
कभी अगर आपको दूसरा संकल्प आ जाता है तो ये कमजोर हो जाता है, या कभी आपके अंदर हीन भावना आ जाती है, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मेरे से ये हो पाएगा, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। तो ये दोस्तों, संकल्प के रास्ते में विकल्प आ जाना, उसको रास्ते को कट कर देना है, माने बाधा उपस्थित कर देते हैं, और आपका संकल्प सही हो नहीं पाता, मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। तो ये जो भी अपने अंदर क्या है कि एक शक्ति को जागृत करिए, हमेशा अपने को शुद्ध विचारों से भरिए। संकल्प शक्ति की शुद्धि के लिए संकल्प शक्ति के 3 आयाम हैं, संकल्प शक्ति, संकल्प शुद्धि और संकल्प सिद्धि। संकल्प हमने कर लिया, हमने जान लिया क्या है संकल्प, मुझे ये कार्य करना है या ऐसा बनना है, तो अपने सारे विचारों को उस पर केंद्रित करना। उसके बाद उससे संबंधित जो भी परियोजना आती है उस पे आपको पुरुषार्थ करना होगा, पर नजर उसी फोकस उसी संकल्प पे रखते हुए, उससे संबंधित सब काम पर करते हुए। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन ना आए, आपके भीतर हीन भावना ना आए, कमी की भावना ना आए, कमजोरी की भावना ना आए। पूरा मतलब आपके अंदर हमेशा शुद्ध, अपने को शुद्ध भावनाओं में जब रखते हैं, लोक कल्याण की भावनाओं में रखते हैं, तो वो संकल्प में बहुत ताकत आ जाती है। अगर हम नकारात्मक विचारों के साथ संकल्प कर रहे हैं तो दोस्तों वो आपके जीवन को बिगाड़ने वाला भी हो सकता है, आपको बहुत नीचे ले जाने वाला भी हो सकता है। आपके अंदर दूसरों के प्रति जेलस है, दूसरों को नीचे दिखाने की भावना है, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देना है, कंपैरिजन की भावना है, द्वेष की भावना है, लालच की भावना है, तो आपके संकल्प शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। और जब वो आपके अंदर वो विचार रूप में आ जाते हैं और उस पे आप पूरा फोकस करोगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। आप अपने जीवन को कीचड़ में भी ले जा सकते हो और कीचड़ में से कमल की तरह ऊपर भी ले जा सकते हो, ये आपके हाथ में है। किंतु आपके जीवन के प्रति आप सतर्क रहिए, अवेयर रहिए। ये जीवन बहुत मूल्यवान है और इसी एक जीवन में हमें बहुत काम करना है, बहुत सीखना है। जब हम ध्यान में आ गए, जब हम जग गए हैं, जब हमारे गुरु, हमारे मास्टर्स हम पर इतनी बेथक प्रयास, अथक मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसे ढीले ढाले रहेंगे? तो हमें अपने जीवन के बारे में नहीं सोचना है। और उससे ऊपर भी होता है जब आप सबके लिए सोचते हो, जब आपका माइंड विस्तृत हो जाता है, सबके लिए जब आप सोचते हो तो उसमें आपका तो भलाई हो ही जाता है, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो जितना जितना इन अच्छे प्योरिटी के भाव में सबके हित के लिए हम सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे, दोस्तों ऐसा नहीं है आपके जीवन में चैलेंज नहीं आएगी, तकलीफें नहीं आएंगे, जीवन सरल होगा नहीं। हमारा भौतिक जीवन में बहुत चैलेंज आएंगे। ये तो ऐसा है जैसे तलवार पे चलने जैसा, जैसे आग पर आग में कूदने जैसा, फिर भी हम कर सकते हैं। वो अद्भुत शक्ति हमारे भीतर है, उस शक्ति को पहचानिए, उसको जगाइए। तो संकल्प शक्ति के साथ साथ हमें संकल्प शुद्धि पर ध्यान देना है। जब हमारी संकल्प शुद्धि हो जाती है और जब हम किसी भी छोटे से छोटे कार्य से आप संकल्प करना शुरू करिए और बड़े पे पहुंचते जाइए, बड़े से बड़ा संकल्प भी आप कर सकते हैं। आपके भीतर वो शक्ति है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आप ही हो। जब आप वो बड़ा संकल्प लेते हो, सारी यूनिवर्स की शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है और वो आपके साथ कार्य करने लगती हैं, लोग जुड़ने लगते हैं, काम होने लगता है दोस्तों।
और ये बहुत कुछ मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ही बता रही हूँ। तो जब भी हम पूरे शुद्ध विचारों के साथ संकल्प करते हैं तो अवश्य ही संकल्प सिद्धि होती है। और ये संकल्प कैसे करना, इसका भी एक विधि विधान है। आप जो भी संकल्प कर रहे हो, मान लीजिए आप ऐसा संकल्प कर रहे हो, आपको ऋषिकेश जाना है, लेकिन घर में आप डर रहे हो कि पति नहीं भेजेंगे, मना कर देंगे, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, आगे कुछ उस दिन ऐसा है तो मैं कैसे जाऊं, लेकिन मन तो बहुत है। अगर आपका अंदर से मन बहुत है तो एक आप संकल्प करिए, देखिए उसका विधि आपको बताती हूँ जैसे मैं करती हूँ। अब देखिए आप ऋषिकेश के उस विशाल पंडाल में बैठे हो जहाँ हर 10,000 लोग बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्टेज पर पत्री सर बैठे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, और वो ध्यान की ऊर्जा पूरे ऋषिकेश में और दूर दूर तक फैल रही है। और आप उन सब के बीच ध्यान करते हुए इतना खुश हो रहे हैं, इतना आनंदित हो रहे हैं, इतना वो मतलब घट रहा है आपके साथ, हो चुका है, आप उसको जी चुके हैं। इस तरह से आपके थॉट के साथ साथ आपके इमोशंस माने जुड़ जाएं, आपके भीतर का वो जॉय जब जुड़ जाता है ना, उतना ही जल्दी वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं कि मैंने अपने संकल्प से, मैंने आश्चर्यजनक रूप से, ऐसे कैसे हो गया मुझे भी आश्चर्य होता है, लेकिन उस संकल्प शक्ति को मैंने जाना है कि वो किस तरह कार्य करती है। बहुत आसान है, आप भी आजमाइए, आप भी करना शुरू कीजिए। जब 2016 की 17 की बात है, ऋषिकेश में शायद उस समय तीसरा महा योग ध्यान कुंभ था, और मुझे एक इंट्यूशन आ रहा था, सबको ऋषिकेश लेके आओ, सबको ऋषिकेश लेके आओ, बार बार वो आवाज सुनाई दे रही थी। और मैं सोच रही थी कि मुझे इंट्यूशन आ रहा है, बट मैं तो कभी अकेली गई नहीं, ट्रेन में मुझे नंबर कहाँ, टिकट पर नंबर कहाँ होता है, सीट नंबर कहाँ होता है, मैंने कभी देखने की कोशिश नहीं करी थी, और मुझे कुछ पता ही नहीं मैं कैसे लेके जाऊंगी सबको। लेकिन जो बार बार आ रहा था तो मैंने कहा ठीक है बाबा लेके आऊंगी, ऐसे बोल के, आप बताओ कैसे करूं। तो मुझे सबके चेहरे दिखने लगे, उनसे बात करो, सबसे बात करे, तो फिर आगे क्या करना, सब टिकट का पैसा पूछ रहे हैं, तो किसी से जानकारी करके टिकट का पैसा कितना आने जाने का लगेगा, कितने लोग जाएंगे, कैसे कौन सी ट्रेन से जाना है। मैंने हम लोग ये उड़ीसा से हरिद्वार से ऋषिकेश जाने का जो 2 दिन का सफर, 2 दिन का ट्रेन के द्वारा जो सफर था, हम लोग 16 लोग गए थे, लेकिन वो 2 दिन हमने ट्रेन में पिकनिक जैसे मनाए, क्योंकि हमने पहले से ये बात कर ली थी कि जो भी जा रहा है सेवा के प्रति पूरा समर्पित होकर जाए, पूरा अपना इस तरह से रहे कि कुछ भी हो लेकिन हम शिकायत नहीं करेंगे, सबकी सेवा करेंगे और मिलकर रहेंगे। तो हम 3 समय ध्यान करते थे और सत्संग करते थे, नए लोगों को ध्यान सिखाते थे, डांस करते थे, सब कुछ भजन करते थे, इतना आनंद आया। ऐसे ही मुझे हैदराबाद में आया 2018 में, जब सेवा दल का मुझे कार्यभार सौंपा गया, तो मैं वहां दूर खड़े खड़े गुरुजी से पूछ रही थी, मुझे कुछ काम बताइए, मैं कैसे उड़ीसा में काम करूं, क्या करूं, मुझे कुछ दिख नहीं है, बताओ अब तो बताओ। ऐसे दूर खड़ी खड़ी बातें कर रही थी मन ही मन उनसे। तो मुझे बोले रामराजू सर को बुलाओ, रामराजू सर को एक ही आवाज आ रही थी। तो रामराजू सर से मैं ऐसी चली गई, सर उड़ीसा आइए, हाँ मैडम आएंगे ना, आप सेहत वर्कशॉप कराइए, 2 दिन का सेहत वर्कशॉप कराइए। और जो 2 दिन पहले उन्होंने खुद फोन करके, 2 महीने पहले खुद फोन करके बोला, कांता मैडम
हम आना चाहते हैं उड़ीसा में, 1 डे फुल वर्कशॉप करेंगे। तो मैंने कहा सर यहाँ 15 लोग भी नहीं आए होंगे पूरे दिन के लिए। किंतु वही 2 महीने के बाद मैं बोल रही हूँ सर जरूर आइए, हम 100 से भी पर ज्यादा लोग होंगे। और कैसे क्या तैयारी होगा, ना तो मेरे पास टीम था, ना मुझे कोई जानकारी थी, लेकिन एक संकल्प बस गुरु ने दिया है मौका, मुझे करना है यही सोचकर, और मैं खड़ी हो गई। और पूरा सारी योजना मेरे अंदर आ रही थी कि किस प्रकार से कौन फंड की व्यवस्था करेगा, और कौन है ना बुक स्टॉल लगाएगा, कैसे मास्टर को बुलाना, कहाँ मास्टर को ठहराना। तो दोस्तों जब भी हम इस तरह संकल्प करते हैं और किसी भी योजना का एक हिस्सा बनते हैं, तो एस्टल मास्टर्स, हमारे गुरु, सभी हमारे सहयोगी बनते हैं और हमारे कार्य को रूपांतरित करते हैं। तो दोस्तों बस आज इतना कहते हुए और मैं अपने टॉपिक को यहीं संपन्न करती हूँ, और फिर से एक बार सभी मास्टर्स के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। ये तो मैंने कुछ ही संकल्प आपको बताए थे, लेकिन ऐसे अनेक संकल्प हैं जो जिसके द्वारा मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और ध्यान महाचक्रम की बात करीब 9 सालों में से मैं लगभग हर साल ध्यान महाचक्रम के लिए हैदराबाद डोनेशन इकट्ठा करके भेजती थी। तो मैं सोचती थी इतने 1000 रुपये मैं इकट्ठा करके भेजूंगी, और उसके लिए मैं घर घर जाके डोनेशन मांगती थी। अकेले ही जाती थी, कोई साथ कभी होता नहीं भी होता, बट अकेले ही निकल पड़ता है कि मुझे ये काम अकेले ही करना है, मुझे अंदर से ऐसे आता था। और कभी भी किसी को कोई भी आध्यात्मिक कार्य हो, ध्यान से करना हो, मेरी सोल बोलेगी कल क्यों, आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, तो मैं बोलती ठीक है बाबा अभी करती हूँ। तो इस तरह से मुझे अपने अंतरात्मा से बातचीत भी करती हूँ, और मुझे गुरु जी से गाइडेंस मिलते हैं, सभी मास्टर्स का प्रेम मिलता है। और बस यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हुई, भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू कांता दी, बहुत अच्छी तरह से अपनी संकल्प, अपनी अनुभवों का ज्ञान अपने दिया है। तो फ्रेंड्स कोई प्रश्न है तो हाथ उठाइए संकल्प शक्ति के प्रति। यस मैम, मंगला मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते अरुणा ज्योति मैम। नमस्ते कांता दी मैं तो आज तक कभी संकल्प की नहीं, पर आज मैं एक संकल्प की हूँ कि जब कभी भी आप मुझे एक बार आवाज देंगे तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ी मिलूंगी। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं चाहती हूँ आपके साथ ही बन के चलूं, हमेशा कुछ सीखूं नया नया, और ध्यान में सबकी सेवा करूं, और घर घर में ध्यान कराने जाऊं आपके साथ। थैंक यू दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। एक बात बता दूंगी कि अगर हम संकल्प नहीं करते हैं तो हमारे विचार चारों तरफ माने जाकर हमारी ऊर्जा ऐसे ही नष्ट हो जाती है। लेकिन हमें जीवन में क्या चाहिए, उस एक चीज पर हम जब संकल्प करते हैं तो वो ऊर्जा उस कार्य को करने में लग जाती है। इसलिए छोटे छोटे संकल्प के द्वारा आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। थैंक यू दी। करुणा जी को। यस। आत्मवंदन मैम। मेरा अभी 3-4 महीने हो गया मैं मेडिटेशन में आई है, लेकिन 1 वीक पहले से मैंने एक संकल्प किया कि मुझे ध्यान सीखना है। तो मैंने सोचा कि 8th फ्लोर में हम लोग का पूरी खाली जगह है, मतलब 20-30 लोग तो आना चाहिए करके, ऐसे मैंने रोज सोचती थी और खुश होती थी कि अरे मैं कितना अच्छा से सिखा रही हूँ, सब जन कितने खुश है, सब जन हैप्पी है, सबका फेस में एक्साइटमेंट देख रही थी। और फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला उनको,
फिर नेक्स्ट डे देखा तो 10-12 लोग आए, और मैं सिखा रही थी, और इतना खुशी हो गई, तो दूसरे दिन और बढ़ गए। तो मैं, और उनका उनका फेस पे वो जो खुशी देख के मेरे को इतना एक्साइटमेंट लगता है, मैं बोला बाप रे, ये खुशी का मेरे को डेफिनेशन अभी मालूम पड़ा कि खुशी क्या होती है करके। तो रोज मैं बहुत एक्साइटमेंट रहती हूँ, खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ, और सबका फेस पे मीन्स जब भी उन लोग आए थे तभी उन लोग का फेस एकदम एकदम मुरझा हुआ था, लेकिन अभी एक एक पल उन लोग का अभी बड़ा, वो खुशी उन लोग के चेहरे पे दुगना हो रही है। आज ज्यादा है, कल और ज्यादा दिख रही है, और इतना खुश लग रहे हैं। और मैं आने के पहले उन लोग आके बैठते तो मेरे को और खुशी लगती है कि अरे बाप रे कितना अच्छा है। तो 1 वीक से मैं भी बहुत हैप्पी हूँ, और वो संकल्प मेरा बहुत अच्छा से काम हो गया। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू मैम। फ्रेंड्स और कोई हाथ उठाइए संकल्प शक्ति के बारे में। यस मैम, प्रमिला मैम। मैम, कांता मैम नमस्ते। रागिनी मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम, कांता मैम, मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि मैं एक किसी काम को संकल्प ऐसा करना चाहती हूँ, कोई गलत काम मैं कर रही हूँ, मुझे पता है कि ये गलत है, मैं उसको छोड़ने का, रिलीज करने का एक बढ़िया सा संकल्प कैसे लूँ मैम? उसको छोड़ना चाहती हूँ, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन नहीं छोड़ पा रही। वो संकल्प बताइए मैम मुझे, मैं छोड़ पाऊँ उसको। देखिए, पहले आप अपनी साधना को बढ़ाइए दीदी, क्योंकि पहले बोलते हैं कि संकल्प शक्ति या शक्ति, आपके पास जब ज्यादा शक्ति होती है तो क्या होता है, जब हम अच्छाइयों को अपने भीतर भरते जाते हैं तो बुराइयां अपने आप निकलती जाती हैं। तो आप ज्यादा साधना कीजिए और आप अपने विचारों पे ध्यान दीजिए दिन भर में, आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा विचारों को ड्रॉप कीजिए, आप निर्विचार स्थिति में रहने की कोशिश करिए, आप अवेयर रहिए उसके प्रति। आप एक संकल्प डाल दियो ना, वो होगा जरूर, बस उस दिशा में आपको थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। तो अभी आपको ऊर्जा को पहले ग्रहण, जब हमारे पास ऊर्जा होती है तो ही वो ये मैनिफेस्ट होता है, समझ रहे हैं ना? तो आपने संकल्प डाला सही है, उस पर आप गुजर भी रहिए, लेकिन उसके लिए कार्य करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए। और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, मैं ध्यान तो कर रही हूँ लेकिन मेरी ऊर्जा लीक भी हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। नेगेटिव थॉट्स के द्वारा, दूसरों के इमोशंस के प्रभाव में आकर। तो वो अपना ऊर्जा लेवल को बढ़ाइए पहले, ऊर्जा लेवल बढ़ाते बढ़ाते ये अपने आप होने लगेगा, हो जाएगा एक दिन। हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छी तरह से अपने समझाई कांता दी। और प्रमिला जी, आप क्या है, आपको पता चल गया ये सही नहीं है मेरे जीवन में। यस मगर मैम। एक गलती आप कर रहे हैं कि यस जो मैम। सही नहीं है उसके ऊपर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं, ऊर्जा किस तरफ जा रही है, सही नहीं पर जा रही है। हाँ जी तो मैम। लॉ ऑफ पोलैरिटी कहते हैं, हमको वो नहीं चाहिए मगर हम उस पे ध्यान दे रहे हैं, तो वही होती है जिस पर हम ध्यान देते हैं। तो आपसे आपको क्या करना है, आपको जो भी बनना है, मैं ये बन गई हूँ, ये बन गई हूँ, ये बन गई हूँ, मैं तो उस पर ध्यान दीजिए। और अपने आप ऊर्जा को, जैसे कि कांता दी बताएंगे, शक्ति को बढ़ाते जाइए, मौन धारण कीजिए, अपने आप को आपसे छूट के चले जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। जो आपको नए संकल्प शक्ति, पे ध्यान मत दीजिए, आपको क्या चाहिए उस पे फोकस करिए, उसी पे ऊर्जा डालते रहिए, और उसको जो नहीं चाहिए उसको भूल जाइए यू। ओके एकदम ही। मैम। जो ओके मैम। वंडरफुल, अच्छा ओके प्रश्न मैम। पूछा है प्रमिला। तो फ्रेंड्स, आज का दिन, कहाँ से साउंड आ रही है? तो फ्रेंड्स, आज का ये संकल्प शक्ति ही हमारे जीवन है, क्योंकि हम बिना संकल्प, बिना इंटेंशन अपने जीवन कोई भी दिशा में नहीं जाएगा। जैसा चल रही है अगर वैसा अगर हम चलने देंगे तो गलत चीजें भी अपने जीवन में आएगा। तो हमको पता चलना चाहिए किस दिशा में हमको जाना है। अगर इस तरह का नहीं होता तो कोलंबस अमेरिका को डिस्कवर नहीं कर, इंडिया के पास नहीं आते, कितने ही डिस्कवरीज नहीं करते हैं।
इतने इतने इन्वेंशंस, डिस्कवरीज जो हो रही हैं, वो सब नहीं हुआ होता है। संकल्प शक्ति ही अपने जीवन में हमको मार्गदर्शक दिखाती है, मगर पहले हमको अपने विकल्पों के ऊपर काम करना है। जैसे कि कांता दी बताएं, ये विचार आ रहे हैं, वो ये करना है, वो करना है, इतना सारा है, तो उसको उस विकल्पों को रहित होना है, तो ध्यान शक्ति को बढ़ाना है। ज्यादा ज्यादा ध्यान साधना करते रहे तो अपने आप विकल्प पूरा चले जाएंगे, तब जाकर के हमको संकल्प शुद्धि होगा। यस, आई वांट दिस इन माय लाइफ, ये मेरे लिए सही है, तो उस दिशा में हम जाएंगे। वो संकल्प शुद्धि होने के बाद ही संकल्प सिद्धि होती है हमको। इस तरह से हम अपने जीवन में हम काम करना है। करुणा मैम, आप म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर दी मैम, मैं उनको म्यूट कर दी। यस रेखा जी। यस हाँ नमस्ते। मेरे को ध्यान में लाने वाले मेरी दीदी कांता दीदी, आज मैं संकल्प शक्ति का ही कुछ बताना चाहती हूँ। पत्नी जी सर कटक में आ रहे थे, मेरे पैर में बहुत जोर से मोच आ रखी थी। उन्होंने कहा कि मैं बोली दीदी कैसे, मैं तो 2 कदम भी नहीं चल पा रही हूँ। इन्होंने कहा रेखा ध्यान में बैठ जाओ और संकल्प लो। संकल्प इनकी तरफ से बोला गया, लेकिन सुबह मैं उठती हूँ मेरे पैर में कुछ भी नहीं है। मैं ध्यान में बैठी हूँ, गर्मी का टाइम है, मेरे को इतना ठंड लग रहा है, मतलब गर्मी में भी ठंड लग रहा है। मैंने इनको बताया कि ये क्या हो रहा है, मैं तो ध्यान में भी गर्मी में रजाई लेके बैठ रही हूँ। तो इन्होंने कहा सूर्य देवताओं को नमस्कार करके ऐसा वातावरण बना दे जो मेरे शरीर के अनुकूल हो। और मैंने संकल्प लिया और हो गया। मतलब इनकी संकल्प शक्ति मेरे ये बताते हैं और मेरे काम आती है। संकल्प शक्ति में बहुत ताकत है। बस मेरे को यही बोलना था। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। थैंक यू रेखा जी। रेखा जी के पास ऐसा हजारों हजारों एग्जाम्पल्स है, और कांता दी तो संकल्प शुद्धि हो गए, वो जो बोलती है वो हो जाती है। शी हैज अनलॉक द पावर ऑफ संकल्प शक्ति, इंटेंशन को, क्योंकि अपने से अबाव हो गए हैं। मेरे जीवन में मुझे ये चाहिए वो चाहिए से अबाव हो गए हैं, क्योंकि फिजिकल लाइफ में हमको थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा नॉर्मल नीड्स फुलफिल हो गए तो बस है, मगर इस महासंकल्प के लिए जो अपने आप को जुड़ गए तो सारा शक्ति जुड़ जाती है उनसे। तो इसलिए जो बोलती है वो हो ही जाते हैं, उनको मार्गदर्शक अपने आप देखता है। तो हम सबको संकल्प शक्ति का शरण में आना है। पहले हमको ध्यान शक्ति को बढ़ाकर विकल्प रहित होकर संकल्प शुद्धि कर फिर संकल्प शक्ति को इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं कि मेरा पति मेरा गुलाम बन जाए, मुझे ये पैसा मिल जाए, वो पैसा मिल जाए, मेरे घुटनों का दर्द चले जाए, इस तरह के संकल्पों के पीछे मत पड़िए। उसके लिए अपने बुद्धिमता है, उसको व्यक्त करते हुए ध्यान शक्ति अपने आप हो चले जाएगा। फिजिकल रियलिटी में क्या बदलाव लानी है वो लाइए, मगर अपना शक्ति को। एक कीचा साउंड कहाँ से आ रही है? ये कांता दीदी के ओके, तरह से आप अपना संकल्प एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने जीवन में, क्या हो रही है, मुझे क्या चाहिए, किस तरह से हमको करना है, जाना है। अगर आप सोचेंगे ध्यान शक्ति को कंफ्यूजन है तो चुपचाप आप ध्यान करते रहिए, संकल्प मत करिए। ध्यान करते रहेंगे आपको ऑटोमेटिकली वो दिशा मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और प्रश्न? हाउ टू यूज संकल्प पावर इन अ डेली लाइफ। बस हमको कांता दी, अंजन जी पूछ रहे हैं कि अपने जीवन, जैसे कि दोस्तों आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जब हम ध्यान में आ गए, सत्य को जान लिया, तो हमारा फिजिकल लाइफ का एक चैप्टर एक तरह से संपन्न हो गया। तभी हम दूसरे द्वार में पहुंचे आध्यात्मिकता के। तो अभी मैं एक आत्मा हूँ, और जो भी हमारे जीवन व्यवहार में सामने आते हैं वो सब भी आत्माएं हैं, ना कि बहन देवरानी जेठानी इस तरह का कुछ नहीं, सभी हमारी सामने आत्माएं हैं। तो हमें उन सब अपनी उन्नति भी करनी है, उन सब की भी करनी है। क्यों करनी है? क्यों हम इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हर एक का जब आगे बढ़ते हैं तो हम भी आगे बढ़ते हैं। तो आप सोचिए मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे कि आपको ऐसे लगे
एक छोटे संकल्प से शुरू करिए। जैसे कि आपको लगता है मैं 5 लोगों को ध्यान सिखाऊं, या सिखाऊं से पहले आप सोचो 5 लोगों को ध्यान के बारे में बताऊं। अभी सिखाने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, 5 लोगों को ध्यान के बारे में फोन पे बताऊंगी। तो आप 5 लोगों को किन किन को बताना है, उनको आप 5 लोगों को बात कीजिए, उनको ध्यान के बारे में बताइए। इधर की उधर की कोई बात नहीं, मैं ध्यान कर रही हूँ, ये फायदा हो रहा है, बहुत पावर है इसमें, आप भी एक बार करिए, प्यार से ऐसे बताइए। तो वो हर दिन मैं 15 दिन तक ऐसे बताऊंगी। आपने ये संकल्प ले लिया और वो 15 दिन में हो सकता है आपके साथ चैलेंज आएंगे, आपको समय भी ना मिले, कुछ ऐसा भी हो जाए, तबीयत भी खराब हो जाए, बट फिर भी आपकी नजर उस संकल्प पे रहनी है। आज मैंने 5 लोगों को आज बता दूं, सुबह दोपहर तक ही बता दूं, रात तक ना छोड़ूं, कहीं रात को कुछ और काम हो जाए। तो 15 दिन आपने वैसे किया, 5 लोगों को बताया, आपका वो संकल्प क्या हुआ, उसमें आपको महारत हासिल हो गई, वो आपका सिद्ध हो गया। इसी तरह से और मैं क्या कर सकती हूँ, तो आज मैं 2 बच्चों को ध्यान में सिखाऊंगी। तो 2 बच्चों को चॉकलेट देकर अपने आस पड़ोस के बच्चों को लाकर बैठाए, उनको देखो तुमको चॉकलेट देंगे, आइसक्रीम खिलाऊंगी, और 10 मिनट आंख बंद करके बैठो। ऐसे मैं 7 दिन करूंगी। अगर आप 2 चीज 7 दिन के 5 दिन के जो भी किए, कुछ एक चीज मन में सोचा और उस पर अमल किया, तो वो आपका संकल्प हो जाता है और उसमें पूरा वर्क करना, संकल्प सिद्धि हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कीजिए। ओके अंजन जी, अपनी डेली लाइफ के बारे में आपने बताया है कि किस तरह से अपने जीवन बिता रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं, हमारे फिजिकल रियलिटीज में भी बहुत सारी हमारी जरूरतें होंगी। तो अगर आप कंफ्यूज है, वो नहीं हो रही है, मटेरियलाइज नहीं हो रही है, तो आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली? सपोज जॉब में आपको 20% अप्रेजल चाहिए, इस तरह का जॉब चाहिए, तो आप अच्छी तरह से आप संकल्प करिए कि आई एम गेटिंग दिस जॉब, आई गॉट दैट जॉब, मुझे वो जॉब मिल गई बोलकर आप इस तरह का संकल्प करके जॉब ऑलरेडी आपको मिले जैसा अगर आप कर ले तो ऑटोमेटिकली वो जॉब आपको आ जाएगी। ओके, यू कैन वर्क ऑन दिस लाइक दिस। अभी फ्रेंड्स हमारे समक्ष में हमारे सबसे प्रिय अरुणा मैम आ गए हैं। हम आज दसरा का संदेशा और संकल्प शक्ति का संदेशा लेकर आज का सेशन हम क्लोज करेंगे। मैम वेलकम मैम। सभी को आत्म प्रणाम। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते कांता जी, कंग्रेचुलेशंस। आपने आज संकल्प शक्ति के बारे में पत्री जी के प्रबोध बहुत अच्छा से एक्सप्रेस किया है। आपकी संकल्प, आपकी तपन, श्रद्धावान लभते ज्ञान बोलते हैं भगवत गीता में। पहला वो श्रद्धा अपन को रहना चाहिए, वो श्रद्धा आपकी बातों में दिखाई दे रहे हैं। मुझे पहले आपकी जो संकल्प शक्ति के बारे में आपकी पहले के मैं वो टॉपिक नहीं सुना, आप बोलते जा रहे तब इसकी मैडम की संकल्प कितना अच्छा रहा ऐसा समझती जा रही। बाद में आपने टॉपिक ही रिवील किया है, आपकी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में जब बता रहे जा रहे, इतना संकल्प है, इतना बहुत अच्छा संकल्प है मैडम का इस PSSM का ऊपर, ऐसा समझती जा रही। बाद में आपने रिवील किया है कि आपकी टॉपिक यही है, तो आप ऐसा संकल्प के साथ ही आप जा रहे हैं। बहुत अच्छा से आपने एक्सप्रेस किया है मैम। उड़ीसा में कितना अच्छा काम कर रहे, आप मामूली से एक साधारण औरत बोल रहे, आप नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक
आदि पराशक्ति के, दुर्गा माता के जैसे हैं आप। आत्मज्ञानी को यहाँ फिजिकल के एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। रमण महर्षि जी इंदिरा गांधी जी से हिंदी में और इंग्लिश में बात करते थे। वो 7वीं कक्षा पढ़ा है रमण महर्षि जी। कैसा हुआ ये? आप इतना अच्छा से उड़ीसा में एक आदि पराशक्ति की जैसे इतना अच्छा ध्यान प्रचार कर रहे। रियली ग्रेट मैम, विलेजेस में भी जाके। और अभी मैं, हमारी बच्चे कॉल किया तो मैं बाहर निकली जूम में से, फिर आ गई तो आपने बोलने लग रहे कि 5 जन को फोन में बात कीजिए, ध्यान प्रचार करिए, बोल रहे। इतना तपन है अंदर, इतना तपन है। बस कांता जी के जैसे हम सब हो गए तो 2050 ने और आगे ही अपना ध्यान जगत हो जावे जल्दी से जल्दी। रियली मैम, सल्यूट आपको। सभी को अभी बोलूंगी मैं विजयदशमी का शुभाकांक्ष सभी को। वी आर ऑल आदि पराशक्ति। तो अपनी अंदर इतना शक्ति रहते हैं मगर हम वहां शक्ति को भूल जाते हैं। तो यहाँ विजयदशमी हमको हर एक साल याद दिलाते हैं कि हम सब आदि पराशक्ति है, हम कोई कम नहीं है। मगर यहाँ शक्ति को हम पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ओके, पीएसएसएम के बिफोर हमें नहीं पता था, अपना जीवन मामूली सा चला जा रहा था। जब पीएसएसएम में आने के बाद अपना जीवन का कुछ अर्थ मिला है। हाँ, मेरा जीवन का भी कुछ अर्थ है, हम सबका। अभी इतना अच्छा काम हमें दे चुका है सर जी ने, सच्चे युग का निर्माण। सच्चे युग का निर्माण, एक इंजीनियर को पता होता है कि बिल्डिंग को कैसा कंस्ट्रक्शन करना। तो इसका मतलब यह है कि पत्री जी ने बोलते हैं एक एक लोक में मैं ढूंढ के ऊर्ध्व लोक में ढूंढ के तुम सबको हम इधर ला चुके हैं। मैं, इसका मतलब वी आर नथिंग बट हायर वर्ल्ड की बीइंग्स है। तो हमें पता है सच्चे युग का निर्माण कैसा करना है। तो मैडम जी, फिजिकल एजुकेशन की जरूरत हमें नहीं है, हमें करना है सच्चे युग का निर्माण। बस इतना आत्मज्ञान, वी आर हैविंग that much of knowledge and that much of energy। आदि पराशक्ति है, हमें दुर्गा माता की तरह आगे जाना ही है। तो सर जी को देखना, एक पल भी ठहरते नहीं। हर पल एक गांव से दूसरे गांव को, एक गांव से दूसरे गांव को, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, और ये देश से और एक देश को, सारी दुनिया हिलते रहते हैं। विद इन 30 इयर्स में दुनिया भर के पीएसएसएम स्प्रेड हो चुके हैं। ये कैसा हुआ है? इतना मेहनत कर रहे सर जी ने, और आपके जैसे पिरामिड मास्टर्स भी है पीएसएसएम में, इसलिए तो इतना अच्छा से स्प्रेड हो रहे। और भी हम सब कांता जी के जैसे हुआ तो और भी तेज से पीएसएसएम को अपन अच्छा से स्प्रेड करके सच्चे युग को जल्दी से जल्दी हम ला सकते हैं। ओके, धन्यवाद कांता जी, धन्यवाद रागिनी, सभी को धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया। मेरा हिंदी अच्छा है, हमारा हिंदी अच्छा है। थैंक यू। मैम, और इतना जैसे एकदम से दिल के अंदर छू जाता है, और ऐसे लगता है सुनते ही रहे आपको। इतना ज्ञान का भरा हुआ जो सुनते हैं ना, जैसे ऐसे डूब गए उस ज्ञान में। तो मैम, आप सभी को देख कर मैं सीख रही हूँ। तो यहाँ पे एक संकल्प की बात और मैं बताना चाहूंगी। जब ये ऋषिकेश ध्यान कुंज हुआ, उससे 2 साल पहले पथरी से हैदराबाद ध्यान महाचक्रम से मिलकर घर आ रही थी।
सर ने पूछा और मैडम जी कैसा है? मैंने कहा सर यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत अच्छा ध्यान ज्ञान सब कुछ इतना अच्छा लगता है। और मैं चौथी बार यहाँ आई हूँ सर, मुझे हर साल आना बहुत अच्छा लगता है। सर किंतु अगर मेरी इच्छा थी अगर कुछ हिंदी में होता तो भी बहुत अच्छा होता। और देखिए 2 साल बाद ऋषिकेश में हिंदी में भी शुरू हो गया। और मेरी इच्छा थी कि मैं पत्री सर का ज्ञान सबको बताऊं, तो मैंने रागिनी मैम को कई बार बोला मैम मैं स्पीच देना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, बट पता नहीं हो नहीं रहा मेरा। तो आज मेरा ये संकल्प भी पूरा हो गया कि मैं गुरु के कॉन्सेप्ट को बोल पाई। और गुरु हमेशा मेरे ऊपर कृपा रखते हैं, मेहरबान है। तो ये सब गुरु को ही श्रेय जाता है। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। मैम अमृत वाक्य से हम क्लोज करेंगे मैम। ओके राइट, टाइम हो चुके ना। ओके फ्रेंड्स, आंख बंद करिए प्लीज। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हो ध्यान जगत, जय हो ध्यान जगत, जय हो शाकाहार जगत, जय हो शाकाहार जगत, जय हो पिरामिड जगत, जय हो पिरामिड जगत, जय हो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, जय हो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, जय हो ऑल द पिरामिड मास्टर्स, जय हो ऑल द पिरामिड मास्टर्स, जय हो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, जय हो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, जय हो पत्री जी के संदेश, जय हो पत्री जी के संदेश, जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो। ओम शांति शांति ओम शांति शांति शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। फ्रेंड्स आज का दिन बहुत ही अद्भुत ज्ञान से हम अपने जीवन का एक नया पाठ हम लेकर जा रहे हैं। अपने संकल्पों को और अच्छी तरह से साकार करने के लिए हम ध्यान साधना को बढ़ाते हुए अपनी निजी जीवन का संकल्पों को साकार करते हुए इस लक्ष्य हमारा विश्व कल्याण का लक्ष्य को भी ज्ञान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, विश्व कल्याण का संकल्प में भी हम भागीदार बनेंगे। फ्रेंड्स इसी के साथ हम सेशन क्लोज करेंगे। कल एक अद्भुत ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे पत्री जी के प्रबोध में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू अरुणा ज्योति मैम, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू अरुणा मैडम, थैंक यू दीदी, थैंक यू मैम, थैंक यू लव यू।